Hello and welcome to session 3 of sales management. Student, here we cover two topics, motivation and buyer motivation. Means how do a buyer motivate to buy a product. Sales management में important thing जो हम कवर करते हैं वो हैं बायर्स को इन्फ्लुएंस करना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाता है और मोटिवेशन क्या है. दिस वी विल कवर अंडर दिस टॉपिक. कम टू दिस स्लाइड. सेल्स परफॉर्मेंस मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स. सो मोटिवेशन इज व्हाट? इट इज एन एक्टिवेटेड स्टेट within a person that leads to goal directed behavior. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक पर्सन को डायरेक्ट करता है, उसको एक दिशा दिखाता है कि वो कैसा बिहेव करे. सो मोटिव इज अ कंस्ट्रक्ट representing an unobservable force that stimulates and compels a behavioral response. मोटिव एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो कि बताता है, जो कि एक स्टिमुलेट करता है, एक स्पार्क जनरेट करता है फॉर अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड इट प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रिस्पॉन्स. मोटिवेशन में सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी जाएगी दैट इज नीड. नीड कब अराइज होती है? क्या आप बता सकते हैं कि नीड कब अराइज होती है? यस, नीड तब अराइज होती है जब आपके सामने कोई और प्रोडक्ट है और आप चाहते कुछ और हैं. दैट इज़ द नीड. मीन्स जो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ एक्चुअल. जो अवेलेबिलिटी है वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, वो प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है. आप कुछ और चाहते हैं लेकिन जो मार्केटियर है, सेलर है, वो कुछ और ही प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है. सो नीड्स अकर व्हेन अ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट between an actual and a desired state of being. There is a difference between the actual product and your desired state of the product. There you can see a model of motivation. There is a model in motivation. Model, it starts with the unsatisfied need. Means a customer, or you can say a person need is unsatisfied. मीन्स जो उसको प्रोडक्ट चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रही है. जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है. दैट मीन्स देर इज़ एन अनसेटिस्फाइड नीड. उसकी नीड नहीं है सेटिस्फाइड. दैट क्रिएट्स टेंशन. इफ देर इज़ एन अनसेटिस्फाइड नीड तो वो क्या करती है? टेंशन क्रिएट करती है माइंड में. देन ड्राइव्स कम्स. First stage is unsatisfied need. Second stage is tension, creation of tension. Third stage it is drives. Drives means कि उस टेंशन से बाहर आने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ इंस्टिंक्ट्स हमारे माइंड में आते हैं, कुछ ड्राइव्स फोर्स करती हैं हमें. बिहेवियर फॉर सर्चिंग. वी विल search behavior exists after drives. Search behavior at fourth stage. Then we will search the product that satisfy our need. When we consume the product at this level, that gives the satisfaction. So unsatisfied need will be converted to satisfied need that reduce the overall tension. जो अनसेटिस्फाइड नीड से टेंशन क्रिएट हुई थी वो नीड सेटिस्फाई होने के बाद हमारी टेंशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है. सो दिस इज़ द मॉडल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वर्क इन दिस मैनर. Unsatisfied need, then tension, then drives,
then we'll go for searching the behavior, will satisfy the needs, and that reduces the tension. It is all about model of motivation. Then comes to psychological process of motivation. Motivation is what? It is an individual choice. एक काम करने का इनिशिएटिव लेना, that depends on the individual कि वो क्या इनिशिएटिव ले रहा है. That means he is motivated. He expend a certain amount of effort on that task. अब जब उसने इनिशिएटिव लिया है काम करने के लिए, then उसके ऊपर वो काम करेगा. That means he will do the efforts to do that task and persist in expending effort over a period of time. That means उसको effort लगा करके जो वो काम कर रहा है, उसको काम को पूरा करने के लिए he require times. That means there are certain determinants, or you can say the factors of motivation. Factor of motivation consists of, first is the level of effort expended. Level of effort expended leads to job activity task. Means एक level पे हम efforts करेंगे, efforts से क्या activities arise होंगी. Activities includes when a salesperson, he is motivated and means he has certain stimulations to do the task, then he will go for doing that task. अब task क्या होंगे? He will develop the sales presentations because he has to influence the prospects. तो उसके लिए वो presentations तैयार करेगा, अच्छी से अच्छी और एक attractive presentation तैयार करेगा, जिससे कि उसके कस्टमर्स, उसके प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो कन्विंस हो सके उसकी बातों से और प्रोडक्ट परचेज कर सके. सेकेंड थिंग, ही कैन गो फॉर कॉलिंग ऑन पोटेंशियल न्यू अकाउंट्स. ही कैन कलेक्ट द डेटाबेस एंड ही कैन call them to convert them into the to convert them for their to their consumers. And third thing is servicing existing customers. जो कस्टमर्स ऑलरेडी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनको और एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग हो सके. सो जॉब एक्टिविटी टास्क, इट लीड्स टू एक्सपेक्टेंसी. That is perceived linkage. There will be a link between increased effort on task and improved performance. When a salesperson go for doing the task or do the efforts to do the task, it will improve the performance on some performance dimensions. Means एक सेल्स पर्सनल एफर्ट करता है काम करने की, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की, that will lead to improve the performance. Second determinant is level of performance on some performance dimensions. That means कि उसकी कौन सी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, क्या डायमेंशंस हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने की. दैट इज सेल वॉल्यूम. जब वो नई सेल्स प्रेजेंटेशंस देगा, नए पोटेंशियल अकाउंट्स को कॉल करेगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम. then he'll have new account sales, that will leads to profitability of the sales. means जैसे उसकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नए कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, वैसे ही कंपनी के प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे. इट विल लीड्स टू इंस्ट्रूमेंटैलिटी. that means relationship between improved performance on some dimensions and attainment of increased rewards. जैसा एक सेल्स पर्सन परफॉर्म करेगा, अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा थ्रू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम एंड थ्रू इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, दैट विल लीड्स टू इंक्रीज रिवॉर्ड्स. कंपनी भी उसको उसकी परफॉर्मेंस के बदले उसको रिवॉर्ड्स देगी. इट मे बी फाइनेंशियल और इट मे बी नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. देन थर्ड डिटर्मिनेंट इज इंक्रीज्ड अटेनमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स. So rewards can be intrinsic as well as extrinsic. Intrinsic is like
नॉन मॉनेटरी मेजर्स, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स यू कैन से, कि किसी अपनी ही टीम के सामने उस सेल्स पर्सनल की प्रेज कर देना, दैट इज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इज कि उसको बोनस देना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, दैट विल लीड्स टू व्हाट, वैलेंस फॉर रिवॉर्ड। इट इज वैलेंस मीन्स एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटैलिटी, दैट इज वैलेंस फॉर परफॉर्मेंस। उसने जो एफर्ट्स किए, एफर्ट्स से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इफ परफॉर्मेंस विल इंप्रूव, profits will be generated by the firm, that will lead to reward to the employees or the sales personnel. So a motivated employee will do the effort. That's why level of effort expanded is linked with the motivation. So these are the determinants of motivation. Next slide is पर्सनल characteristics affecting motivation. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं? कोई भी सेल्स पर्सनल, इफ एन सेल्स पर्सनल इज सेटिस्फाइड विद द करंट रिवॉर्ड्स, दैट अफेक्ट्स टू मोटिवेशन. अगर उसको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं, उसके काम के बदले उसको, उसकी परफॉर्मेंस के बदले उसको प्रॉपर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, देन ही विल बी सेटिस्फाइड एंड ही विल बी मोटिवेटेड. डेमोग्राफिक वेरिएबल्स इंक्लूड्स एज फैक्टर, sex, population. These also have effect of motivation. Job experience. अगर कोई भी पर्सनल अच्छा वर्क कर रहा है and he is experienced also, this will also lead to motivation. Psychological variables includes personality traits. Personality characteristics क्या हैं उसकी, क्या वो चीज़ों को पॉजिटिव मैनर में लेता है या नहीं लेता है. पॉजिटिवली ले रहा है चीज़ों को तो वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होगा. सो इट इज़ व्हाट, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स. नाउ कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट theory given by Abraham Maslow about the motivation. Abraham Maslow, he is a psychologist. He divides needs into 5 category. जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, there are 5 categories of needs. यहाँ पर उसने लेवल बनाए हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल. अकॉर्डिंग टू हिम द फोरमोस्ट लेवल इज फिजियोलॉजिकल, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. सबसे पहले एक पर्सन को इन वाली नीड्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है. ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? ये बेसिक नीड्स को हम फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड हंगर, थर्स्ट, रिप्रोडक्शन, शेल्टर, क्लोथिंग. ये सारी हमारी बेसिक नीड है. फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, पहनने के लिए कपड़े. ये सारी इसकी बेसिक नीड है. जब तक उसकी ये नीड फुलफिल नहीं होगी, ही कैन नॉट गो फॉर सेकेंड लेवल नीड. एज एंड व्हेन दिस फर्स्ट नीड इज सेटिस्फाइड, देन ही विल गो फॉर द नेक्स्ट लेवल नीड, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सेफ्टी नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स इंक्लूड स्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी, प्रोटेक्शन. इसमें हम जॉब सिक्योरिटी नीड्स इंक्लूड करते हैं. ऑर्डर, लॉ, टेन्योर, पेंशन स्कीम्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी नीड्स. दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज. पेंशन स्कीम्स, ताकि वो जॉब्स के बाद भी वो सिक्योर हो सकें.
पेंशन स्कीम्स गिवन बाय द कंपनीज, इंश्योरेंस स्कीम्स में लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देती है इंश्योरेंस कंपनीज, ताकि कोई फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आए, कोई इमरजेंसी आ सकती है जिसकी वजह से there may be a loss of life of the employee. So after his death his family will survive. That is a security. So it is the need that must be satisfied by the employees. When these two level needs have been fulfilled, the next level need is love belonging. Belongingness need is also important. Belongingness need includes acceptance, love, affection, family and group acceptance, friendships. That means belonging needs वो needs हैं जो कि एक आपको सोसाइटल नीड्स आप कह सकते हैं. आप जैसा कि ये कहा जाता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल. आप अकेले नहीं रह सकते, आपको सोसाइटी में रहना पड़ेगा, सोसाइटी में रहना होता है इनफैक्ट. तो आपकी ये वाली नीड्स भी एक इम्पॉर्टेंट नीड है. यू हैव टू फुलफिल योर अफेक्शन नीड्स, योर फैमिली, acceptance, friendship. Then comes to self-esteem need. Self-esteem need is related with the status of the personnel. That includes achievement, respect, recognition, responsibility, prestige. आपकी क्या सोसाइटी में इमेज क्या है. एवरी पर्सन वांट टू make a status in the society. So that is self-esteem need. You want to appreciate your efforts with other people. So that comes under self-esteem need. और जो last level need है, that is self-actualization. Self-actualization is the higher most level in this hierarchy. Self-actualization need include intense job challenge, full potential, full expression. Self-actualization need ये वो need है जो आप अपने आप आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं. In the sense कि for example, if a president, he has everything. President is such a personality that he hold everything. Means फाइनेंशियल नीड उसकी पूरी फुलफ़िल हो चुकी होती है, स्टेटस नीड उसकी फुलफ़िल हो चुकी होती है. लेकिन मान लीजिए वो एक पोएट है, लेकिन वो नीड उसकी अभी तक पूरी नहीं हुई है. दैट विल बी कंसिडर्ड इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अच्छी कहानी, अच्छी पोएम्स लिखता है वो, लेकिन अभी तक उसकी ये नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो वो नीड हम कैटेगराइज करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में. सो बाय दिस यू कैन सी there are 5 needs in the hierarchy. There are 5 needs in the hierarchy. So this is about motivation. Now comes to questions. Questions for yourself is concept. You have to explain the concept of motivation, and second is explain psychological process of motivation. So these are the two questions that can help you in help you in understanding more about the concept. So thank you student, thank you very much. This is all about session 3.